اور اب خبر تفصیل سے عالمی عدالت انصاف یعنی ICJ نے میانمار کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ملک میں روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ عالمی عدالت انصاف میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کا مقدمہ سننے کی مجاز ہے۔ یہ اعلان آج عالمی عدالت انصاف کے جج عبدالقوی احمد یوسف نے کیا۔ عالمی عدالت انصاف روہنگیا مسلمانوں کی مبینہ نسل کشی کے خلاف میانمار پر لگائے جانے والے الزامات پر مبنی مقدمہ سننے کی مجاز ہے۔ اس بات کا اعلان 23 جنوری کو عالمی عدالت انصاف کے جج عبدالقوی احمد یوسف نے کیا۔ انہوں نے مدعی ملک گیمبیا کو مقدمے کی کارروائی کو مزید آگے بڑھانے کی اجازت دینے کا فیصلہ بھی سنایا۔ اس فیصلے کے ذریعے عالمی عدالت انصاف میانمار میں مزید تشدد کو روکنے کے لیے عارضی ہنگامی اقدامات اٹھا پائے گی۔ عالمی عدالت انصاف نے یہ فیصلہ گیمبیا کی جانب سے دائر کردہ اس درخواست پر دیا جس میں اپیل کی گئی تھی کہ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف تشدد کو روکنے، ان کو محفوظ بنانے اور ماضی میں ان کے خلاف کیے گئے اقدامات کے شواہد کو محفوظ رکھنے کے لیے ہنگامی اقدامات اٹھائے جائیں۔ مغربی افریقہ کے مسلمان اکثریتی ملک گیمبیا نے اس حوالے سے گزشتہ برس نومبر میں اقوام متحدہ کی اعلیٰ عدالت سے رجوع کیا تھا، جہاں مختلف ممالک کے درمیان تنازعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ گیمبیا نے الزام عائد کیا تھا کہ میانمار روہنگیا کے خلاف نسل کشی میں ملوث ہوا ہے، جو کہ سن 1948 کے کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ گیمبیا کے وزیر قانون ابوبکر تمباڈو وہ شخص ہیں جن کی کوششوں کی بدولت ہی میانمار کی رہنما اور نوبل انعام یافتہ آنگ سان سوچی کو ہیگ میں واقع عالمی عدالت انصاف میں پیش ہو کر یہ تردید کرنی پڑی تھی کہ ان کی حکومت ملک کی روہنگیا اقلیت کے قتل عام میں ملوث نہیں تھی۔ واضح ہے کہ میانمار حکومت نے گزشتہ ہفتے ایک ایگزیکٹو سمری جاری کرتے ہوئے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف نسل کشی کے الزامات کو مسترد کر دیا تھا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ ادھر اقوام متحدہ کے میانمار سے متعلق خصوصی نمائندہ یانگ ہی لی نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ میانمار پر دباؤ ڈالے کہ وہ اقوام متحدہ کی اعلیٰ عدالت کی طرف سے آنے والے ہر فیصلے پر عمل پیرا رہے۔ انہوں نے کہا کہ بدھ مت اکثریتی قوم اپنی ذمہ داری سے بچ نہیں سکتی ہے۔ انسانی حقوق کا احترام کرنا میانمار کے لیے بھی لازمی ہے۔ آج عدالت نے میانمار کو روہنگیا عوام کے خلاف نسل کشی کے روک تھام کے لیے اقدامات کرنے کا حکم دیا ہے۔ Myanmar government will follow through on the decisions and the recommendations that the court may make, and the international community stays sieged on this issue and brings this issue front in mind so that Myanmar will not evade its own responsibility. China and Russia in the Security Council, it really is regretful, and it is, and I've said this many times, that it is shameful for those states to not do anything in the face of what. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ طالبان کو بامعنی مذاکرات کے لیے پرتشدد کارروائیاں روکنی ہوں گی۔ امریکی صدر نے سوئٹزرلینڈ کے شہر داووس میں عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس کے موقع پر افغان صدر اشرف غنی سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بامعنی افغان امن بات چیت کے لیے طالبان کو تشدد کی کارروائیوں کو روکنا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈاووس میں عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس کے موقع پر افغانستان کے صدر اشرف غنی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے طالبان پر زور دیا کہ وہ تشدد کے راستے کو ترک کر دیں۔ امریکی صدر کا موقف ہے کہ وہ اس وقت تک بامعنی مذاکرات نہیں ہو سکتے جب تک طالبان واضح طور پر تشدد میں کمی نہیں کرتے۔ ٹرمپ نے اشرف غنی کے ساتھ مذاکرات کے دوران طالبان کی طرف سے تشدد میں واضح اور پائیدار کمی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس سے افغانستان کے مستقبل سے متعلق بامعنی مذاکرات میں مدد ملے گی۔ واضح ہے کہ امریکی صدر کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور طالبان کی مذاکراتی وفد کے درمیان بات چیت جاری ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ بات چیت اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ چند روز قبل طالبان نے امریکہ کو افغانستان میں مشروط اور محدود جنگ بندی کی پیشکش کی تھی۔
तालिबान की इस पहल को अगरचे खुश आइंद करार दिया गया था, तहम बाज तज्जियाकारों का कहना है कि अमेरिका अब भी तालिबान पर मुस्तकिल जंगबंदी समेत काबुल हुकूमत और दीगर अफगान धड़ों से बातचीत पर जोर दे रहा है। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर ने गुज़श्ता बरस सितंबर में उस वक्त तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए थे जब फरीक़ैन अमन मुआहदा तय पाने के करीब थे। ताहम ये बातचीत गुज़श्ता माह एक बार फिर बहाल हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। शोरीज़दा मुल्क अफगानिस्तान में गुज़श्ता बरस से 162 सेहत मराकज़ मुकम्मल तौर पर तबाह या बंद हुए। अफगान वज़ारत सेहत के हुक्काम ने बताया कि मुल्क में मौजूद 3000 से ज़ायद हेल्थ सेंटर्स में से 162 तबाह हुए, जिसकी वजह से करीब 1 मिलियन अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम न हो सकें। अफगानिस्तान में नाक़िस तिब्बी सहूलियात की वजह से यहाँ के शहरियों को हिंदुस्तान समेत दीगर ममालिक में इलाज के लिए जाना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे। यरूशलेम में आज दर्जनों आलमी रहनुमा होलोकास्ट और सामियत दुश्मनी के खिलाफ जमा हुए। पोलैंड में ऑशविट्ज़ के नाजी अज़ियती कैंप की आज़ादी के 75 बरस मुकम्मल होने के मौके पर मुनक्किद होने वाली एक तकरीब में शामिल रहनुमाओं में रूस, फ्रांसीसी और जर्मन सदूर समेत अमरीकी नायब सदर भी मौजूद रहे। यह पहला मौका है कि इतनी ज्यादा तादाद में आलमी रहनुमा होलोकॉस्ट की याद में किसी तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान वर्ल्ड होलोकॉस्ट फोरम में मौजूदा दौर में सामियत दुश्मनी के मसले पर भी बातचीत की जा रही है। फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रों मकबूजा बैतुल मुक़द्दस की कलीसा में इजरायली फोर्सेस को देखकर गुस्से में आ गए। बताया जाता है कि फ्रांस के सदर बैतुल मुक़द्दस दौरे के दौरान जब एक गिरजा घर गए तो वहां मौजूद इजरायली पुलिस भी उनके साथ चर्च में घुस आई, जिस पर फ्रांसीसी सदर आपे से बाहर हो गए। मैक्रों का कहना था कि हर कोई यहां के उसूलों से वाकिफ है। फ्रांसीसी सदर बुलंद आवाज में इजरायली पुलिस के एहलकारों को गिरजाघर से बाहर निकलने को कहते हुए खुद चर्च में दाखिल हो गए। सेंट एनी कलीसा मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के पुराने शहर में वाक़ है, जिसका इंतजाम 1850 से फ्रांस की हुकूमत चला रही है और बैनुल-अक़वामी मुआहिदों के रू से भी इस गिरजाघर पर फ्रांस का कंट्रोल तस्लीम शुदा है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि उनका मुल्क अभी भी 2015 के जौहरी मुआहिदे पर पाबंद है, लेकिन यूरोप को मुतनब्बे किया है कि किसी भी खिलाफ वर्जी के बुरे नताइज बरामद होंगे। دارم به کشورهای اروپایی اعلام میکنم ما داخل برجام هستیم، ما از برجام خارج نشدیم، ما نمیخوایم برجام رو از بین ببریم، ما متعهدیم به برجام، ما کاهش تعهداتمون هم طبق برجامه. من به 3 کشور اروپایی اعلام میکنم که اگر شما تخلفی کردید، اگر عهدی را زیر پا گذاشتید، تمام تبعاتش مسئول شما هستید. ما مسئول चीन का रुख करेंगे, जहां हुकूमत ने मौलिक कोरोना वायरस को रोकने के लिए वुहान शहर को सील कर दिया है। वायरस पर काबू पाने के लिए वुहान शहर से चलने वाली तमाम ट्रेनें और परवाजें मुअत्तल कर दी गई हैं। चीन भर में इस पुरअसरार वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 571 बताई जा रही है। इस वायरस से मजमूई तौर पर अब तक 17 अफराद हलाक हो चुके हैं। ज्यादातर हलाकतें वुहान शहर में ही हुई हैं। चीन के शहर वुहान से फैलने वाली वबा कोरोना वायरस मुतादिद अफराद की हलाकतों का सबब बन गया है। इंतजामिया ने इस वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए अहम इक़दाम उठाए हैं, जिसके तहत वुहान शहर को सील कर दिया गया है। इंतजामिया ने शहर से बाहर जाने वाली परवाजें, अंदरूनी शहर चलने वाली ट्रेनें और बसों समेत कश्तियों की सर्विस भी मुअत्तल कर दी है, जबकि शहरियों को वुहान शहर से बाहर न जाने की हिदायत दे दी गई है। वुहान शहर की आबादी तकरीबन 11 मिलियन है। इंतजामिया के फैसले से शहर में ग़िज़ाई अजनास की किल्लत भी पैदा होने का खदशा है। हुकूमत के साथ साथ मुल्क भर में कायम मुख्तलिफ कंपनीज ने अपने अमले को वस्ती शहर वुहान का गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज का मशवरा दिया। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन पर जोर दिया कि वो
नज़ला, जुकाम, बुखार और ठंड की अलामत जाहिर होने पर इंतहाई एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सफ़र के दौरान या घर से निकलते वक्त मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें। चीन की मुख्तलिफ कंपनीज ने अपने मुलाजमीन को कोरोना वायरस से बचाने की गर्ज से बड़ी तादाद में मास्क तकसीम करना शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक कोरोना वायरस के समुद्र पार भी 500 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। चीन का पुरअसरार कोरोना वायरस अब अमेरिका में भी जा पहुंचा है, जहां इसका पहला केस रिपोर्ट होने की तस्दीक कर दी गई है। द सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक चीन से फैलने वाले इस वायरस से एक अमेरिकी शहरी मुतासिर हुआ, जिसमें वायरस की तशखीस कर ली गई। हांगकांग में भी कोरोना वायरस के पहले 2 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। फिलिपाइन में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। थाईलैंड, जनूबी कोरिया, जापान में भी कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं। मुख्तलिफ ममालिक ने अपने शहरियों को इस वायरस से बचाव के लिए एहतियात बरतने की अपील की है। वाज़ेह है कि वुस्ती चीनी शहर वुहान कोरोना वायरस फैलने का मरकज है। इस वायरस का ताल्लुक सारस से है, जो कि सांस की खतरनाक बीमारी का बायस बनता है। वुहान इंतजामिया का कहना है कि इस वबा के फैलाव का मरकज यहाँ की आबी हयात की फूड मार्केट है, जिसे 1 जनवरी को बंद कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो चीन के शहर से फैलने वाला कोरोना वायरस सऊदी अरब भी पहुंच चुका है। सऊदी अरब में हिंदुस्तानी नर्स कोरोना वायरस से मुतासिर है। वज़ीर ममलिकत बराए खारजा वी मुरलीधरन का कहना है कि केरल की तकरीबन 100 नर्सें अल हयात अस्पताल में काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि सभी नर्सों का कोरोना वायरस के लिए टेस्ट कराया गया, जिसमें एक नर्स कोरोना वायरस से मुतासिर पाई गई। मुतासरा नर्स का असीर अस्पताल में इलाज जारी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई जारी है। सीनेट में मुआखजे की कार्रवाई के दौरान डेमोक्रेट्स ने अमेरिकी सदर पर धोखाधड़ी और बदउनवानी का इल्जाम लगाया। देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सीनेट में जारी मुआखजे की कार्रवाई के दौरान डेमोक्रेट्स ने इल्जाम आयद किया है कि रवा बरस होने वाले सदारती इंतखाब में दोबारा कामयाबी के लिए सदर ट्रंप ने धोखा दिया और वो बदउनवानी के मुर्तकिब हुए हैं। सीनेट में मुआखजे की कार्रवाई के दौरान 4 शंबे को डेमोक्रेट्स की टीम ने 8 घंटे तक सदर ट्रंप के मुआखजे के हक में दलाइल दिए। मुआखजे की कार्रवाई में ऐवान नुमाइंदगान की प्रोसिक्यूशन टीम के सरबराह एडम शेफ ने दलाइल देते हुए कहा कि सदर ट्रंप ने अपने मुमकिना डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन और इनके साहबजादे के खिलाफ करप्शन के इल्जामात पर तहकीकात के लिए यूक्रेन के सदर पर दबाव डाला। एडम शेफ ने कहा कि अगर सीनेट ने ट्रंप को बरी कर दिया तो अमेरिका के आलमी वकार को नुकसान पहुंचेगा। एडम शेफ ने अपने दलाइल में कहा कि सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता बरस यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर दबाव डाला कि वो साबिक नायब सदर जो बाइडन और उनके साहबजादे के खिलाफ बदउनवानी के इल्जामात की तहकीकात करें। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ने अपने दफ्तर के इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया ताकि वो इंतखाबात में दोबारा कामयाबी हासिल कर सकें, और ऐसा करते हुए जब वो पकड़े गए तो उन्होंने एक मरतबा फिर अपने दफ्तर का इस्तेमाल करते हुए तहकीकात में रुकावटें डाली। एडम शेफ ने कहा कि सदर ट्रंप ने इंतखाबी कामयाबी हासिल करने के लिए अपने इत्तेहादी मुल्क की इमदाद रोकी। दूसरे अल्फाज में उन्होंने धोखा दिया। अगर इस पर उनका मुआखजा नहीं हो सकता तो फिर कुछ नहीं हो सकता। एडम शेफ ने सीनेट की कार्रवाई के दौरान ऐवान नुमाइंदगान की कार्रवाई, कानूनी हवालों और वीडियो शवाहिद का हवाला देते हुए ऐवान में मौजूद सीनेटर से अपील की कि वो अपनी जाती वफादारियां अलग रखते हुए सदर ट्रंप की किस्मत का फैसला करें। याद रहे कि डेमोक्रेट्स के अक्सरियती ऐवान नुमाइंदगान ने 18 दिसंबर को सदर ट्रंप के मुआखजे की मंजूरी दी थी, जिसके बाद ये मामला रिपब्लिकन अक्सरियती ऐवान सीनेट में जेर बहस है। वहीं सदर ट्रंप ने इस पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि डेमोक्रेट्स के पास उन्हें कसूरवार ठहराने या सदारती दफ्तर से बेदखल करने के लिए शवाहिद नहीं है। अमरीकी सदर इससे कबल 12 ये कह चुके हैं कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
खबर ऑस्ट्रेलिया से, जहां के जंगलात में आग बुझाने के अमल में शामिल एक पानी के टैंकर वाला तैयारा गिरकर तबाह हो गया। जुमेरात को पेश आने वाले इस हादसे में जहाज के अमले में शामिल 3 अफराद हलाक हो गए। हुक्काम के मुताबिक यह तैयारा जनूब मशरिकी रियासत न्यू साउथ वेल्स में गिरकर तबाह हुआ। हलाक हुए तीनों अफराद जहाज के अमले में शामिल थे। It's been quite a challenging day to try to access the site and to find out what we need to do to support the people that are involved. Devastating, mate. It's devastating. Yeah, I mean, those people got families and whatever, and they're just out here trying to help everybody out, and you have a tragedy like that. Yeah. अमेज़न के सरबराह और दुनिया के अमीर तरीन शख्स जेफ बेजोस का मोबाइल फोन हैक होने के मामले में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के शामिल होने का शुबह तूल पकड़ता जा रहा है। गर्चे सऊदी अरब ने फोन हैकिंग के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है, ताहम अक़वाम मुत्तहिदा के 2 सीनियर एहलकारों ने मामले की तफ्तीश का मुतालबा किया है। अमेज़न के सरबराह जेफ बेजोस का फोन हैक करने के मामले में सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का हाथ था या नहीं, इस मामले की जांच होनी चाहिए, यह कहना है अक़वाम मुत्तहिदा के 2 सीनियर एहलकारों का। जी हां, अक़वाम मुत्तहिदा के 2 सीनियर एहलकारों ने मुतालबा किया है कि अमरीकी कंपनी अमेज़न के बानी और वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक बेजोस के मोबाइल फोन से मालूमात चोरी होने के मामले की तहकीकात होनी चाहिए। इस बारे में अमरीकी मीडिया में इत्तलात सामने आने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदा डेविड काय और एग्नेस कैलामार्ड ने दावा किया कि चंद शवाहिद इस जानिब इशारा करते हैं कि शायद सन 2018 में होने वाले एक साइबर हमले में सऊदी वली अहद मुलव्विस हो सकते हैं। उन्होंने अमरीका, सऊदी अरब और दीगर हुकाम से तहकीकात का मुतालबा किया है। यूएन माहिरीन का कहना है कि मामले की फौरी तहकीकात की जरूरत है ताकि हक़ाइक़ को सामने लाया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन का कहना है कि निजी फर्म की तहकीकात की तस्दीक के लिए इजाफी माहिर को मालूमात तक रसाई दी जाए। हम आपको बता दें कि बरतानिया के जरीदे द गार्जियन ने गुज़िश्ता रोज अपनी एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि मई 2018 में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के ज़ाती व्हाट्सएप अकाउंट से भेजे गए वीडियो मैसेज के बाद जेफ बेजोस का मोबाइल फोन हैक हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक चंद घंटों के दौरान जेफ बेजोस के मोबाइल से बड़ी तादाद में डेटा भी चोरी हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कोलकाता में शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी की मुखालिफत में रैलियों का सिलसिला जारी है। आज जमीयत उलमा हिंद मगरबी बंगाल की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। जमीयत उलमा हिंद मगरबी बंगाल के चेयरमैन सिद्दीकुल्लाह चौधरी से हमारी नुमाइंदा शबाना ने बातचीत की। एनआरसी के खिलाफ आज कोलकाता में जमीयत उलमा हिंद की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई है। इस रैली में रियासती वजीर सिद्दीकुल्लाह चौधरी भी शरीक हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इस रैली में शामिल है। क्या कहेंगे, आज सीए एनआरसी के खिलाफ ये रैली है, मकसद ये रैली जमीयत उलमा हिंद की जानिब से मुख्तलिफ जिम्मेदारों को लेकर, वकील भी है, महिला भी है, इसी तरीके पर बच्चे भी हैं, सबको लेकर कर रहे हैं ताकि हम चाहते हैं कि क्या सीए बातिल हो, एनपीआर भी बातिल हो। पूरे मुल्क के लोग परेशान हैं, जबरदस्ती उन पर थोपा जा रहा है। कानून से ज्यादा मुल्क के लोगों की आवाज की कीमत ज्यादा है। पूरे मुल्क में 50-60 यूनिवर्सिटी, 100-200 कॉलेज, सैकड़ों स्कूल, तमाम लोग आज सड़क पर उतरे हैं। आज़ादी के बाद इतने बड़े तरीके पर एहतजाज नहीं हुआ था। हम लोग एहतजाज को बराबर चलाना चाहते हैं। आज पहला दिन है। रोजाना 10:30 से 12:30 बजे तक और शाम को 2 से 5 बजे तक ये 3 दिन चलेगा मुसलसल। उसके बाद जिला में हम जाएंगे, फिर जिला में भी धरना शुरू हो जाएगा। और लोगों को हम चेतावनी देना चाहते हैं, आप खबरदार रहें, बाहोश रहें, पुरअमन तरीके पर एहतजाज चलेगा। ममता बनर्जी भी सीए और एनआरसी के खिलाफ जो है वो रास्ते पर है, रैली निकाल रही है। कल उन्होंने दार्जिलिंग में रैली निकाली थी। तो आप भी उनकी हुकूमत में वजीर हैं, तो सभी को जिम्मेदारी है, दी गई है कि अपने अपने तौर पर रैलियां निकाले और एहतजाज। बिल्कुल बिल्कुल, ये चूंकि पब्लिक का मसला है,
हुकूमत पब्लिक से बनती है, अगर पब्लिक ना हो तो हुकूमत नहीं है। पब्लिक का उनकी आवाज़ क्या है, ये मसला असल है। इसलिए उस आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए ये काम हम आगे बढ़ाते हैं, पुरअमन तरीके पर होगा। जरूरत हो फिर जुलूस निकाला जाएगा, फिर जिम्मेदार लोग आगे बढ़ेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। ये भी उम्मीद की जा रही है कि आइंदा 27 जनवरी को असेंबली में वजीर आला ममता बनर्जी इस ताल्लुक से कोई बिल पेश करें। नहीं, इस सिलसिले में बात हो गई, उन्होंने वादा किया है 27 तारीख को, चूँकि अपोजिशन भी चाह रहे हैं, हुकूमत बंगाल की तरफ से वजीर आला ममता बनर्जी तो इंडिया में सबसे पहले दिन इसके खिलाफ मुखालफत शुरू की है, ठीक है। तो इसलिए उस सिलसिले में हम लोग काम को आगे बढ़ा रहे हैं, हुकूमत भी करे, पब्लिक भी लगे, ये काम तब आगे बढ़े। क्या वादा किया है, मतलब आइंदा 27 तारीख को बिल, 27 तारीख को वो एक रेजोल्यूशन लाएंगे, बीजेपी छोड़कर तमाम पार्टी उनमें रहेगी। ममता बनर्जी ने सबसे पहले सीए और एनआरसी के खिलाफ तृणमूल ऐसा दावा कर रही है कि वो जो है एहतजाज कर रही है, लेकिन पंजाब और केरला के बाद क्यों देर से जो है वो बंगाल असेंबली में रेजोल्यूशन? ममता बनर्जी सोच रही थी कौन कितने पानी में है, इसीलिए देर हो रही है और कुछ नहीं। ममता बनर्जी की तरह कोई चीफ मिनिस्टर सड़क पर उतर कर मैदान में उतर कर काम नहीं किया। ये एक मजबूत बिल होगा, बहुत 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 मजबूत। तो आप भी उस दिन असेंबली में मौजूद हैं? हाँ बिल्कुल है। बहुत सारे लोग धरना भी दे रहे हैं, कुछ ये भी कहा जा, पुरअमन तरीके पर सब धरना दे ताकि पब्लिक में बात आए। ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी एहतजाज कर रही थी बंगाल में, तो दीगर जमातों को, सियासी जमातों, समाजी तंजीमों को एहतजाज करने की जरूरत नहीं थी, ऐसा तृणमूल लीडर? नहीं, मुझसे खुद बात हुई है, उनका कहना है पुरअमन तरीके पर अच्छे लोग करे बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे रियासती वजीर सिद्दीकुल्लाह चौधरी, जो जमीयत उलमा हिंद मगरबी बंगाल के रियासती सदर भी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनका एहतजाज सीए और एनआरसी के खिलाफ जमीयत का एहतजाज जारी रहेगा और 3 दिनों तक लगातार जमीयत इस बिल के खिलाफ एहतजाज करेगी। कैमरामैन औरगो के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर लखनऊ के घंटा घर पर जारी एहतजाज अपनी शक्लें तब्दील कर रहा है। लोग अपने अपने तौर पर सीएए और एनआरसी की मुखालफत में आवाजें उठा रहे हैं, लेकिन अहम बात यह है कि इन आवाजों के पस मंजर में वतन से मोहब्बत करने और वतन पर मर मिटने के जज्बे दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। आज एहतजाजी खवातीन को चंद शायरों का भी साथ मिला। तारीखी घंटा घर पर मौजूद हैं। खवातीन का एहतजाज बदस्तूर जारी है। मुख्तलिफ शोबा हयात के लोग यहाँ आ रहे हैं और एहतजाज में शिरकत करके ये बताना चाहते हैं कि वो भी एहतजाज का हिस्सा हैं। कुछ कलमकार, कुछ शायर आज एहतजाज में पहुँचे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि किस अंदाज से वो अपना कलाम पेश कर रहे हैं और क्या कुछ पैगामात हिंदुस्तान की जमहूरियत और दस्तूर के हवाले से आवाम तक पहुंचा रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन गुलजार अहमद खान से दरख्वास्त करूंगा कि दिखाएं हमारे नाज़रीन को कि क्या कुछ मंजरनामा लखनऊ के इस तारीखी घंटा घर के लॉन में चल रहा है। ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। मेरे साथ एक नारा सिर्फ लगाना है, वो ये है कि हिंदुस्तान, 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 ये हिंदुस्तान एक खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता है। इस खूबसूरत गुलदस्ते पर देश के चंद ऐसे लोग हैं जो तेजाब फेंककर उसका चेहरा भद्दा करना चाहते हैं। हिंदुस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है और इसमें जब भी कभी जुल्म की हवाएं चली हैं तो ये बहादुर कौम की जो मेरी बहनें और बेटियां बैठी हुई हैं और इस बहादुर कौम का सिपाही जो आपके सामने खड़ा है, हम सब आप लोगों के शाना बशाना हैं। किसी भी मोड़ पर कहीं भी हम आपके साथ हैं। एक 4 मिसरे हाजिर करता हूं हुक्मरानों के नाम। रोज करो पहचान, कहां घर किसका है। रोज लगाओ आग,
तुम्हें डर किसका है? रोज लगाओ आग, रोज लगाओ आग, तुम्हें डर किसका है? आग लगाने वालों ये भी याद रहे, आग नहीं ये देखेगी घर किसका है। ये भरम है तुम्हारा कि थक जाएंगे, हक बयानी से शायद भटक जाएंगे, क्यों किसी बात में हम अटक जाएंगे, आँख में बन के कंकर खटक जाएंगे, आँख में बन के कंकर खटक जाएंगे, अपनी परवाज़ से हम गिरेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे, ये ऐलान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा। और चलिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि इंडोनेशिया में कश्ती हादसा पेश आया। जी हां, इंडोनेशिया से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर तारिकीन वतन की कश्ती डूबी है, एक शख्स हलाक हुआ है, 9 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। तो इंडोनेशिया से इस वक्त बड़ी खबर, जहां मलेशिया जा रही कश्ती पे 20 तारिकीन वतन सवार थे और ये कश्ती डूबी है, एक शख्स हलाक हुआ है, 9 जख्मी हुए हैं। ये बड़ा हादसा पेश आया है, इंडोनेशिया में तारिकीन वतन की कश्ती डूबी है और बताया यह जा रहा है कि एक शख्स इस हादसे में हलाक हुआ है, 9 अफराद लापता बताए जाते हैं। मलेशिया जा रही कश्ती में 20 तारिकीन वतन सवार थे। इस कश्ती को बड़ा हादसा पेश आया। हम आपको बताते चलें कि तारिकीन वतन के साथ अक्सर इस तरह के हादसे पेश आते हैं, क्योंकि वो समुद्री रास्ते से एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं और ये मलेशिया से जा रहे थे, जिसमें एक शख्स हलाक हुआ है, 9 अफराद लापता बताए जाते हैं। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब। कई बड़ी बीमारियों का खर्चा लाखों